Welcome all of you from the Time family. So here we are to help you understand the nuances and the nitty-gritties and the basic details of interview and GD techniques. More importantly, I would name it life skills. That's it. Plain and very simple language में life skills. That's how it is, right? Please do not think of interviews and GDs as a very separate process. Please never think in that manner. Sorry for NLG. Sorry for interruption. Happy. May I request you, if it is possible, then can you continue in bilingual as well as Hindi or English? Absolutely. Thank you. Thank you so much. Please continue. Please. Sorry for interruption. Please. So that's what. So बात ये है कि we should never think कि GD अलग है, PI अलग है मेरे लाइफ के प्रोसेस से. ऐसा नहीं है. Please understand that perspective. So last few years of your life, whatever you have been doing, you're studying, you were so regular in your school, college and things like that, right? इतने सालों में जो हम schools गए, college गए, अभी आप second, third year, first year में जहां भी हो, अगर एक सिंपल सवाल मैं आपसे पूछूं, आप लोगों से, एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, क्या मिला? सीधी बात. What did you get? Can anyone think on it? कि पिछले 14-15 साल के एजुकेशन से wherein you were regular, if I can tell you that probably you would get up 6 o'clock in the morning, 6 बजे उठते थे तुम स्कूल जाने के लिए, 8 बजे स्कूल पहुंच गए, 2-3 बजे तक स्कूल में होते हो, उसके बाद घर आके ट्यूशन, कोचिंग, बहुत सारी चीजें होती थी. कैन यू इमेजिन इतने साल से आप 8 से 10 घंटे डेली बिजी हो अपने आप को एजुकेट करने में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में? So who is going to answer me this question? What did you get? So let me see who's going to answer this question. क्या मिला अभी तक आपको? कुछ भी आप सोच के बता दो मुझे. क्या मिला? What did you get? Sagar, kindly response. Sagar. Sir. Please. Sir, we got to learn how to interact and how to live in a society and behavior other than academics that we have learned. Very good. That's a very good answer. That's a very good answer. I was expecting this answer. Okay, that's very good. Thank you. So see, she focused on other things also. She did not say कि नहीं हमने सिर्फ पढ़ाई करी है. क्योंकि my dear students, you got yourself, you got you. आपको खुद से मिलना हुआ इतने सालों में. Now you know you. Your personality has developed. You have known how to handle situations. जब दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाती है या कुछ ऐसा हमें कुछ ऑर्गेनाइज करना है या कुछ झगड़ा कर लिया हमने, कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशन को, जिंदगी की सिचुएशन को. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव लर्नड लाइफ लेसन्स इन ड्यूरिंग ऑल दीज years of your life so far. अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, देखो बहुत बार हमें लगता है यार नॉलेज तो मेरी बड़ी है लेकिन ज्यादा नहीं बड़ी. माय डियर स्टूडेंट्स, आई टेल यू, आप जो कॉलेज जाते हो और आते हो और क्लास में सिर्फ बैठते हो, उसी से आपको नॉलेज मिल रही है ऑटोमेटिकली. आई एम टेलिंग यू. बहुत बार हमें पता नहीं चलता, we may not know, but we get all those knowledge. We get all those knowledge in terms of experience. So please try and understand this. आपको जो आपकी personality मिली है is the result of all these experiences which you have faced during your school days and college days. During all the interactions, जो आपने दोस्तों के साथ interactions करी, teachers के साथ interaction करी, घर में जो interaction करी, इसका result हमारी personality is the result of all these experiences. Please understand that. That's one point. Second point is that आप याद करके सोच कर देखो, क्या इंटरव्यूज और जीडीज पहली बार होगा आपके से रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में? एंड पीपल आर स्केयर्ड, ओ गॉड ये कंपनी वाले आके क्या पूछेंगे, कैसे जवाब दूंगा, हाउ शुड आई आंसर दोस क्वेश्चंस? क्या ये पहली बार आप लोग करोगे जीडी और इंटरव्यू? इससे पहले क्या आपने जीडी इंटरव्यू कभी नहीं करा है? हो सकता है फॉर्मली नहीं करा हो, आई एग्री टू दैट. हो सकता है आपने फॉर्मली ना करा जीडी इंटरव्यूज, बट माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इनफॉर्मली कितनी बार, आई टेल यू, फ्रॉम योर अर्ली चाइल्डहुड, जब छोटे बच्चे थे आप, उस समय भी हो सकता है आपके नेबर में से कोई अंकल आकर, आंटी आकर आपसे पूछते होंगे, अरे मुझे 3 का टेबल बताकर सुनाओ, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या ये पोएम जरा बताओ तो ये पोएम क्या है, या somebody asks us, अरे प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारी कंट्री का, प्रेसिडेंट कौन है. ऐसे हमारा टेस्ट तो बचपन से हो रहा है.
कभी पापा के दोस्त आके पूछ रहे हैं, कभी कोई आकर कुछ पूछता है हमसे जब हम छोटे होते हैं तो। कितनी बार तुम्हारा इंटरव्यू हो चुका है? ऑल ऑफ यू प्लीज अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, you have been interviewed so many times without even you realizing it. आपको पता भी नहीं चला है my dear students. तो ये क्या, ये तो रोज की बात है फिर आपके लिए. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. why do you worry now? कितनी बार इंटरव्यू दे चुके हो तुम? कितनी बार आपने डिस्कशन करी होगी अपने दोस्तों के साथ, यार आज कौन सी मूवी चलना है, कोई बोलता है ये वाली, कोई वो वाली, वो अपनी रीजनिंग देता है, लॉजिक देता है. कितनी बार ऐसा हो चुका है आपके साथ, राइट? तो पहली बात तो ये दिमाग से हटा दो ऑल ऑफ यू कि ये इंटरव्यू और जीडी में पहली बार जाने दे रहा हूं, सो आई एम नर्वस. फॉरगेट इट, प्लीज फॉरगेट इट. नर्वस होकर हम खुद के चांसेस को रिड्यूस नहीं करेंगे, दैट्स व्हाट आई विल से. और अगर हम नर्वस हो भी जाते हैं कभी इंटरव्यू जीडी में, कोई बात नहीं, वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स. ऐसा हो सकता है हमारे साथ कि हम थोड़े नर्वस हो गए, डर जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उस डर की वजह से हम पीछे नहीं हटेंगे. दैट्स द होल पॉइंट. होता है ना माउंटेन ड्यू के ऐड में बोलते हैं ना, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है. आई टेल यू फैक्ट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी बोले या एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मिस्टर ओबामा बोल रहे हैं, या जो करंट प्रेसिडेंट है मिस्टर जो बाइडेन, या जिसकी भी बात कर लो, या अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल रहे हैं, या कोई भी बोल रहा, सब प्रिपेयर करते हैं. बिना प्रिपरेशन के कोई नहीं जाता. सीधी बात बता रहा हूं मैं आपको, नोबडी गोज विदाउट प्रिपरेशन. और अगर आप प्रिपेयर्ड हो, आपको डर लगेगा भी, तो भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे माय डियर स्टूडेंट्स. बात इतनी सी है. सो विल नॉट स्टॉप आवरसेल्व्स कि नहीं मैं बोल नहीं पा रहा. सी कम्युनिकेशन नहीं है प्रॉब्लम बहुत केस में. जैसे सर बता रहे थे रितेश सर कि लोग बोल नहीं पाते ठीक से, आंसर नहीं दे पाते. सी कम्युनिकेशन नहीं है हमारी प्रॉब्लम. आई टेल यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, कम्युनिकेशन का मतलब होता है एनी लैंग्वेज में मैं अपनी बात तुम तक पहुंचा दूं, दैट्स इट. तो प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की नहीं है, प्रॉब्लम हेजिटेशन की होती है बहुत बार में, कि हम हेजिटेट करते हैं. ये बोलूंगा तो वो क्या सोचेंगे, क्या 100% सही है, क्या 100% गलत है, क्या बोलूंगा जो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. इस वजह से इस टेंशन में वी एंड अप नॉट गिविंग आवर बेस्ट. वी मे बी बेटर देन व्हाटएवर वी शो आवरसेल्व्स इन इंटरव्यूज. हम क्या पता बेटर हैं जो हम बताते हैं इंटरव्यू में लोगों को, और वो हमें जज कर लेते हैं. फिर उस छोटे से 15 मिनट 20 मिनट में हमें जज कर लेते हैं. यार ये तो गलत बात है, राइट? सो प्लीज डू नॉट लेट देम जज यू ऑन जस्ट whatever feelings you are showing right then during that 8 to 10 20 minutes. And in fact I would say कि उनको ऐसा मौका ही ना दो कि तुम्हें सिर्फ उतने ही टाइम के लिए जज कर ले कि अरे ये तो बोल भी नहीं पा रहा है. क्यों ऐसा मौका दोगे तुमको? प्लीज मत दो ऐसा मौका. प्लीज try and understand that you are definitely better than 10 times 20 times better than whatever you do in a situation wherein you are nervous, where you think that your communication skills are not good. ये चीजें हमें और पीछे पुश कर देती. सो प्लीज ये चीजें दिमाग से हटा दो. मैं बोलूंगा एक नॉर्मल प्रोसेस है, देयर इज एन इंटरेक्शन गोइंग ऑन, कंपनी वाले लोग आए हैं, मुझसे बात करना है, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट. एंड आई विल टॉक टू देम. प्लीज ट्रीट इट लाइक दैट. वन सेकेंड, I will prepare myself. I repeat, I will prepare myself. I'll not let them judge, on whatever, nervousness or hesitation and all. No. I'll prepare myself. I'll overcome my nervousness. I'll overcome. अगर मुझसे पूछेंगे इंटरव्यू में, मेरे से अगर पूछेंगे कि आप नर्वस हो, और अगर मैं हूं तो मैं बोलूंगा सर, यस सर, थोड़ा नर्वस हूं, बट सर आई विल मैनेज. एक ऐसा जवाब दूंगा मैं, सर मैं नर्वस हूं बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ, इट्स एन इंपॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ, लेकिन सर मैं मैनेज करूंगा सर. ऐसा करेज दिखाना होता है हमें. आई टेल यू, ये करेज आपने दिखा दिया, आपके आगे अच्छे आंसर्स आने वाले हैं, ये मैं गारंटी लेता हूं आपकी तरफ से, अगर आपने थोड़ा प्रिपरेशन करा है कि वो इंटरव्यू में क्या क्या पूछेंगे और मैं कैसे आंसर दूंगा. आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू इन योर माइंड. You have been interviewed so many times, आपने जीडीज बहुत बार करी है. प्लीज नेवर लेट योरसेल्फ फील, अपने आप को ये मत सोचने दो कि ये पहली बार होगा जब रिक्रूटमेंट में आप गए हो और आपको डर लग रहा है. प्लीज ये चीज हटा दो, ठीक है? कॉन्वर्सेशन बनाना है, वो पूछेंगे आप जवाब दोगे, सीधी बात. अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं उनको क्लियरली बोल दूंगा, सर आई डोंट नो, आई विल गो बैक एंड चेक.
प्लेन एंड सिंपल लैंग्वेज में, सर मुझे नहीं आता है, मैं जरूर चेक करूंगा सर इसको। ये बोलना कि मुझे नहीं आता है सबसे मुश्किल काम है। आई डोंट नो बहुत मुश्किल है, मैं बता रहा हूं सबके लिए। कोई मुझसे कुछ पूछे और मुझे नहीं पता तो बड़ा मुश्किल होता है मुझे बोलना, यार आई डोंट नो, टेंशन हो जाती है, आई डोंट नो। और मैं आपको बता रहा हूं, आई डोंट नो बोलने से आप नीचे नहीं होते हो, आप उनकी नजर में थोड़े ऊपर आ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है और आपने बोला उनका नहीं पता, आपने आप में इतना करेज था that you said I don't know sir. You did not beat around the bush. इधर उधर की बातें नहीं करी तुमने, उनको तुमने कुछ गलत नहीं डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करी कि अरे कुछ भी बोल दूंगा इनको क्या पता चलेगा। Honesty is still the best policy. And if I say I don't know, I'm a normal human being. भाई मुझे भी नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। I cannot know everything, please. अपने आप को उस प्रेशर में डालो ही मत कि मुझे सब पता है। किसी को सब कुछ नहीं पता है, आपको भी सब कुछ नहीं पता होगा। Whether it is academics, whether it is GK, nobody would know everything, so you would also not know everything. Once in a while, twice or thrice, इंटरव्यू में मैं बोलूंगा आई डोंट नो सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं परेशान भी नहीं होगा। मैं बोलूंगा सर मुझे नहीं पता है, लेकिन सर मैं इसको जरूर चेक करना चाहूंगा, ऐसा करके। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। ये चीजें करने से आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो मोटिवेशन है, आपकी जो कम्युनिकेशन है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। प्रेशर ही खत्म हो जाएगा ना, प्रेशर ही खत्म हो जाएगा। और एक बार प्रेशर खत्म, आप अपना बेस्ट दोगे, सीधी बात तो मैं बोलूं, राइट? सो प्लीज कीप दीज बेसिक थॉट्स इन योर माइंड, राइट? सो लेट मी शेयर अ प्रेजेंटेशन। मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूं जिससे कि आप थोड़े पॉइंट्स नोट कर पाओ। अगर कॉपी पेपर वगैरह है तो थोड़े पॉइंट्स भी नोट कर लो, which will help you improve yourself. देखो एट द एंड ऑफ इट आई थिंक केशव ने या किसी ने बोला अभी बहुत अच्छा कि सिर्फ ये नहीं कि आपको वो इंटरव्यू में जज कर रहे हैं कि आपकी नॉलेज कितनी है, सिर्फ वो चीज नहीं है इंटरव्यू में। इंटरव्यू इज मोर अबाउट कि आप उसको अप्लाई कैसे करते हो सिचुएशंस में, रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे अप्लाई करते हो उन चीजों को, कैसे अपनी लाइफ लीड करते हो, वो चीजें देखते हैं rather than just your basic knowledge. Please keep that in your mind. I think very well said by all the organizers over here. So the basic thought. So I think I'll be able to share my presentation now. Okay. इस तरह से शेयर करूं तो आप देख पा रहे हो या मुझे फुल स्क्रीन में करना चाहोगे? व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो? फुल स्क्रीन में करूं या आप ये देख पा रहे हो? No, sir, it's visible. We can zoom it. आप जूम इन करो, सर क्योंकि जब मैं फुल स्क्रीन में कर दीजिए तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। चलो ठीक है, क्योंकि हाँ ठीक है, मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। मैं बीच बीच में फिर अपने चैट बॉक्स में आऊंगा, बिकॉज जब मैं फुल स्क्रीन करूंगा तो मैं एक्चुअली चैट बॉक्स नहीं देख पाऊंगा, दैट इज द प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, तो मैं फुल स्क्रीन करूंगा और बीच बीच में मैं चैट बॉक्स में आके देखूंगा आपका कोई क्वेश्चन है तो आई वुड लाइक टू आंसर, मैं उन क्वेश्चंस का आंसर भी देना चाहूंगा। ठीक है, मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। Okay, sir. ओके, और बीच बीच में आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। एनीबडी कुछ भी पूछना है पूछो अनम्यूट करके, और चैट बॉक्स में भी चाहो तो डाल सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। फील फ्री राइट फॉर द नेक्स्ट 40-45 मिनट्स। सो ठीक है, सो एट द एंड ऑफ इट भाई पढ़ाई हम लोग कर क्यों रहे हैं? क्योंकि आगे कुछ करना है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। नॉर्मली करना क्या है, तो अपना जॉब करना है किसी कंपनी में, या फिर अपना खुद का कंपनी खोलना है, राइट? या फिर मे बी यू नो कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है, या सरकारी नौकरी, या प्राइवेट, कुछ भी। सो ये सब थॉट्स होते हैं हमारे माइंड। और कहीं भी जाओ आप, चाहे यू गो टू द यू नो प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट जॉब, और सीधा कंपनी आ गई आपके यहाँ पर आपको रिक्रूट करने के लिए, तो ये सबसे पहली चीज वो हमसे बोलते हैं कि भाई अपनी सीवी भेज दो। एक सीवी मंगवा लेते हैं, एक सीवी भेज दो अपनी, फिर बुलाऊंगा, ऐसा करके। आई होप ये आप लोग भी एनकाउंटर करते हो, ऐसा होता है नॉर्मली। whenever you go, the first thing they say कि सीवी बताओ, सीवी भेजो, ऐसा बोलते बहुत बार। आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया तो आके सीवी दो, उसके बाद इंटरव्यू करेंगे, ऐसा कुछ नॉर्मली ऐसा होता है। सो मैं पहली चीज आप सबको ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज स्ट्रेंथन योर सीवी, अपनी सीवी को स्ट्रांग बनाओ। जो आपके रिज्यूमे है उसको थोड़ा स्ट्रांग बनाओ। कैसे बनाएंगे हम अपना रिज्यूमे स्ट्रांग? हम लोग पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे डिफरेंट इवेंट्स में, कॉलेज में, कॉलेज के बाहर।
कुछ ऑनलाइन कोर्सेज करना शुरू करेंगे जो मेरे कोर्स से रिलेटेड है। कॉमर्स कर रहा हूं, इकोनॉमिक्स कर रहा हूं, साइंस कर रहा हूं, जो भी उससे रिलेटेड चीजें मैं कुछ छोटा मोटा कोर्स करूंगा, राइट। थर्ड थिंग मैं क्या करूंगा, मैं कोई एनजीओ में थोड़ी सी अच्छी एक्टिविटी करूंगा, थोड़ा हेल्प करूंगा सोसाइटी को, तो वो वीकेंड्स पे जाके कभी कहीं ज्वाइन कर लूंगा मैं, सो दैट, चलो अभी तो कोरोना का टाइम है, मैं नॉर्मली बता रहा हूं कि आई हेल्प द सोसाइटी ऑल्सो, वो भी करूंगा मैं, राइट। और इन सब चीजों को करने के बाद मैं इसको अपने करिकुलम विटे में लिखूंगा कि सी मैंने ये किया है, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, आई हैव डन। क्योंकि अगर मैं ये सब चीजें नहीं करता हूं, आई डोंट डू इंटर्नशिप्स, मतलब मैं इंटर्नशिप्स नहीं करता हूं, तो मुझे कॉर्पोरेट के बारे में पता नहीं चलता है कि वो फंक्शन कैसे करते हैं, काम क्या होता है, एटिकेट्स क्या है, बेसिक एटिकेट्स। तो मैं ये 3-4 चीजें करूंगा पहले। आप अगर फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, आपके बहुत टाइम है, थर्ड ईयर वाले के पास थोड़ा कम टाइम है, बट स्टिल आप ये मैनेज करोगे, आई एम श्योर। प्लीज स्ट्रेंथन योर सीवी, दिस इज द टिकट टू द नेक्स्ट लेवल। आपके अगले लेवल में जाने का टिकट है ये सीवी, और सीवी को स्ट्रांग बनाना आप लोगों के लिए जरूरी है। प्लीज, आई होप ये बेसिक चीज आप समझते हो। आप दूसरों से कैसे डिफरेंशिएट करोगे अपने आप को, इस बारे में सोचो प्लीज। हाउ डू यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ एंड हाउ डू यू शो देम योर यूनिकनेस, कि आप एक यूनिक पर्सन हो, आप कैसे शो करोगे दूसरों को। इसके लिए प्लीज ऑल ऑफ यू, आप अपनी हॉबीज को ही परस्यू करो, नॉट अ प्रॉब्लम। आप गिटार बजाते हो या स्पोर्ट्स खेलते हो, तो ऐसी चीजों में पार्टिसिपेट करो, मौका मत दो। क्योंकि आपका सीवी जितनी ज्यादा एक्टिविटीज से भरा होगा, इंटर्नशिप से भरा होगा, प्रोजेक्ट से भरा होगा, आई टेल यू, उतने चांसेस आपके होंगे इंटरव्यू कॉल आने के और इंटरव्यू को कन्वर्ट करने के। प्लीज बिलीव इन योर सुपर पावर, ऑल ऑफ यू। सबके अंदर सुपर पावर है, ऐसा नहीं कि सुपरमैन और स्पाइडरमैन के पास ही सुपर पावर है, सबके पास सुपर पावर है, आपके पास सुपर पावर है। प्लीज रियलाइज दैट सुपर पावर ऑफ योर, सबके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी अच्छी वाली होती है। प्लीज उनको रियलाइज करो, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम्हारी ताकत है, और उसको यूटिलाइज करो, आगे बढ़ोगे किसी भी हालत में। दैट्स व्हाट इट इज। और हम लोग सब लोग एक दूसरे से अलग हैं, विल नॉट ट्राई टू कॉपी ईच अदर, कि मैं उसके जैसा बनूंगा, वो जैसा कम्युनिकेशन मैं वैसा ही कम्युनिकेट करूंगा, नहीं हो सकता। सबका अपना अपना स्टाइल होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। बी योरसेल्फ, बी द बेस्ट ऑफ योरसेल्फ, डोंट ट्राई टू कॉपी एनीबॉडी एल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। तेंदुलकर कभी गावस्कर नहीं बन पाए, राइट। कोहली कभी तेंदुलकर नहीं बन पाया, और शुभम गिल कभी कोहली नहीं बन पाएगा। सीधी बात तो मैं ये बोलूंगा तुम लोगों को। अगर तुमने लास्ट टेस्ट सीरीज देखी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, लास्ट मैच देखा किसी ने, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच? कोई बता सकता है इंडिया, कोई बता सकता है? एक रीजन दो मुझे कि व्हाई डिड वी विन दैट लास्ट मैच। जो लास्ट टेस्ट था, आखिरी दिन 5वें दिन हमने 300 रन बना लिया यार। एक रीजन बताओगे कोई कि ऐसा कैसे हो गया यार, 300 350 रन ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5वें दिन बना लिया? कोई अगर क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो तो बताओ, कोई शेयर करो थॉट अपन, लेट मी सी, ऐसा क्या हो गया? Sir, because they have dedication, strong Determination. डेडिकेशन, चलो ठीक है, एक पॉइंट है। और दूसरा कोई कुछ बोलना चाहता है? Determination, sir. डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, नहीं वो तो भाई बाकी पहले भी था। और कुछ बात बताओ। responsibility, सर उनने अपनी सेल्फ कैपेबिलिटी को डाउन नहीं किया, उन्होंने सोचा कि हम और आगे जाके और करें, बेहतर करें, इसलिए। ओके, सो उन्होंने अपने गोल्स को हाई रखा और उन्होंने सोचा कि ये गोल अचीवेबल है, हम अचीव कर लेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। ठीक है, अच्छा पॉइंट। मे बी उन्होंने अपने ऊपर से प्रेशर हटा लिया बेस्ट कि हम पॉइंट, हार गए। बेस्ट पॉइंट है। देयर वाज नथिंग टू लूज, प्रेशर ही हटा दिया उन्होंने। 7 खिलाड़ी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 खिलाड़ी नए थे आई थिंक उस टीम में, राइट? 7 खिलाड़ी थे नए, yes एकदम sir. नए, एकदम नए। 1-2 मैचेस खेले बस। इंडिया के जो बॉलर्स थे, सबकी बॉलिंग अटैक अगर देखो तो टोटल मिलाकर 13 विकेट थे बस, कि उन्होंने अभी तक अपने पूरे करियर में सिर्फ 13 विकेट्स लिए थे, दैट्स इट। और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को अगर मिला ले तो उन्होंने 1200 विकेट लिए हुए थे अपने करियर में। एकदम फ्रेशर्स वर्सेस एक्सपीरियंस चल रहा था। और दीज न्यू प्लेयर्स, इनके ऊपर कोई पिछला बर्डन नहीं था, उनको ये पता ही नहीं था, दे वर अनअवेयर, उनको पता ही नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया के पिच पर 300 रन हम नहीं बना सकते। उनको ये बात नहीं पता थी। दे वर नॉट अंडर दैट प्रेशर, दे डिड नॉट नो कि हम 300 रन नहीं बना पाएंगे ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने ये सोचा भी नहीं, उन्होंने लगा यार कैसे नहीं बना पाएंगे, ये तो हम तो आईपीएल में इतनी बार कर लिया, इधर इतनी बार कर लिया।
सो दे वर अंडर नो प्रेशर एट ऑल। उनको पता ही नहीं था कि 300 रन नहीं बन सकते, और आई टेल यू बिकॉज उनको पता नहीं था इसलिए उन्होंने बना दिया। अगर ये प्रेशर होता कि यार ये तो बन ही नहीं सकता, होगा ही नहीं, तो गया फिर। सो दैट काइंड ऑफ सुपर पावर, काइंड ऑफ यूनिकनेस, उन्होंने अपनी एक यूनिक एबिलिटी दिखा दी सब लोगों ने। यू आर ऑल द फ्रेशर्स, चाहे वो शुभम गिल हो या और कौन था, वॉशिंगटन, और कौन था भाई नए खिलाड़ी, पंत, हनुमान थापा, ऋषभ पंत, ऋषभ पंत, सब 21-22 साल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज हो, सब फ्रेशर्स थे, एकदम फ्रेशर। फिर आप लोग बोलोगे अरे मैं तो फ्रेशर हूं, मुझे जॉब क्यों देंगे? कम ऑन, आप फ्रेशर हो इसीलिए आपको जॉब देंगे, मैं तो ये बोलूंगा, दैट्स हाउ इट इज। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, एक्सपीरियंस से लोग बहुत ज्यादा मेच्योरिटी डेवलप कर लेते हैं, और पता है उसके बाद एक प्रेशर सा बन जाता है, और फिर हम क्या पता इनोवेट नहीं करते। मतलब सबके साथ ऐसा नहीं होता, कि नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन आप एकदम फ्रेशर हो ना, अगर आपकी क्वालिटी क्या है कि आप कुछ भी नई चीज अडॉप्ट करोगे, कुछ भी चीज आप चेंज करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप फ्रेशर हो। इमेच्योरिटी कैन बी योर स्ट्रेंथ, इट कैन बी योर स्ट्रेंथ, बिकॉज तुम क्रिएटिव हो जाओगे, इनोवेट करोगे, नई नई चीजें ट्राई करोगे। तो ऐसी चीजों के बारे में सोचो, रादर देन उल्टा, अरे मैं तो फ्रेशर हूं, मुझे जॉब कौन देगा, मेरा एक्सपीरियंस नहीं। कम ऑन, एक्सपीरियंस नहीं है, ये तुम्हारी सुपर पावर। एक तरह से बोल रहा हूं मैं, हाँ, एक तरह से समझने की कोशिश करो, दैट्स हाउ इट इज, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड कि वहां पर उनका क्या एक्सपेक्टेशन होगा आपसे। एक तो सुपर पावर की बात कर रहा हूं, अपनी यूनिक क्वालिटीज और अपनी सीवी को स्ट्रेंथन करने के लिए मैं बोल रहा हूं आपको। दूसरी बात बोल रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड कि वहां पर जब आपका जीडी इंटरव्यू हो रहा है, आप ये सोचो कि ये जो लोग बैठे हैं इंटरव्यू में, ऐसे लोग मैच्योर्ड लोग जो बैठे हैं इंटरव्यू में बात करने के लिए मुझसे, उनको क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी। इफ आई टेल देम इन माय इंट्रोडक्शन, okay, tell me about yourself, or if I tell them that okay, I'm from Delhi, or I'm from Gurgaon, or I'm from whatever place, and then I tell them I'm from this college, Shyamlal College, or if I tell them that my name is something, and if I tell them about that I'm from BCom or economics, यार ये सब बोलकर हम क्या कर रहे हैं पता है? हम उनको हिंट दे रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ाई हमने एक्सपेक्टेशन उनकी? पहली चीज, मैंने उनसे कहा कि मैं दिल्ली से हूं, तो अब उनकी एक्सपेक्टेशन ये बढ़ गई कि अगर मैं दिल्ली से हूं तो मुझे दिल्ली के बारे में पता होगा। तो मुझसे पूछेंगे अच्छा ये बताओ दिल्ली कितनी बार डिमोलिश हुआ है? जो दूसरे इन्वेडर्स थे दिल्ली में आए, कितनी बार ऐसा हुआ है? पुराना नाम क्या है दिल्ली का? दिल्ली के पहले क्या कैपिटल था दिल्ली का, इंडिया का क्या कैपिटल था दिल्ली के पहले? ऐसा कुछ से पूछेंगे। सी, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि मैं दिल्ली से हूं, इसीलिए दे रेज्ड देयर एक्सपेक्टेशंस, वो मुझसे पूछने लगे। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं श्यामलाल कॉलेज से हूं, तो मुझसे क्या पूछेंगे? वो पूछेंगे ये आप श्यामलाल जी के बारे में कुछ बताइए। पूछेंगे मुझसे, पूछ सकते हैं। क्यों पूछेंगे? क्योंकि मैंने उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी ना। मैंने तो कहा उनसे कि मैं इस कॉलेज से। फिर मैंने उनसे कहा कि मैंने बीकॉम करा है। वेरी गुड। फिर बोलेंगे अच्छा ये बताओ अभी जो रिसेंट बजट हुआ था उसमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी वो कुछ डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रही थी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो भाई आपने कहा आप बीकॉम से हो, तो वो पूछेंगे आपसे कि भाई आप बजट देखा नहीं आपने, और वो जो डिसइन्वेस्टमेंट था वो प्राइवेटाइजेशन से अलग कैसे है? क्या टारगेट है इस बार गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट का? पूछेंगे आपसे, क्योंकि आपने कहा आप बीकॉम से हो। मेरी बात समझ रहे हो आप? जो उनको हिंट्स दे रहे हो उसी को पकड़ लेते हैं, सीधी बात तो ये है, और फिर उससे पूछने लगते हैं मुझसे। एकदम सिंपल लॉजिक है यहाँ पर कि मैं जो जो प्लान कर रहा हूं उनको बोलने का, मैं उनके ऊपर रिसर्च करके जाऊंगा वहां। सीधी बात, आई विल वर्क ऑन दोज थिंग्स एंड देन आई गो इन फ्रंट ऑफ देम। जो मैं बोलने के लिए सोच रहा हूं इंट्रो में बोलूंगा जो भी चीजें। अगर मैं बोलता हूं मेरी क्वालिटी है कि मैं एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूं, आशावादी हूं मैं, तो मुझसे क्या पूछेंगे? अरे 2 एग्जाम्पल बताओ जहां पर तुमने ये चीज शो करी अपनी लाइफ में। और फिर तुम बोलोगे सर मुझे तो एग्जाम्पल याद ही नहीं है। तो इसका मतलब तुमने गलत बोला, झूठ बोला तुमने। फिर इसका मतलब, मेरी बात आप समझ रहे हो शायद, राइट? सो इंटरव्यूज का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट,
आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्लीज आप उनको बताओ। डोंट यू थिंक वो आपसे एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आप मेरी कंपनी के बारे में क्या जानते हो? ये भी तो एक्सपेक्ट करेंगे ना यार। मान लो अगर टीसीएस वाले, इन्फोसिस वाले, ये केपीएमजी वाले कम टू योर कंपनी, तो यार वो तो इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मेरे बारे में आप क्या जानते हो बताओ मुझे। फिर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको जो यहां पर हम जॉब रोल देने वाले हैं उसमें आपको क्या लगता है, किस तरह का काम करोगे आप, प्रोफाइल के बारे में। मेरी बात आप समझ रहे हो शायद। यही है कि इंटरव्यू का, आप अगर फाइनेंस प्रोफाइल के लिए जॉब कर रहे हो तो आपको फाइनेंस के बारे में पता होना चाहिए, मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए तो मार्केटिंग के बारे में पता होना चाहिए, अगर आप एचआर प्रोफाइल के लिए हो एचआर के बारे में पता होना चाहिए, टेक्निकल रोल है तो उसके बारे में। सही, मैं जिस चीज के लिए अप्लाई कर रहा हूं उसके बारे में प्रिपेयर्ड होकर जाऊंगा। फिर भी अगर मुझे कोई ऐसी टेक्निकल चीज नहीं आए, मान लो उन्होंने बहुत खतरनाक सा कुछ पूछ लिया, हे टेल अस समथिंग अबाउट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, और मुझे नहीं पता, तो मैं उनको बोलूंगा सर आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। बस, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ थोड़ी पता होगा मुझे। आई होप यू गेट इट। और जो बात आपके ऑर्गेनाइजर्स बोल रहे थे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हमारे पास होनी चाहिए, जिंदगी भर हम पढ़ने वाले तो है नहीं नॉर्मली। ऑफिस में जाके जॉब करते वक्त क्या हम बुक लेके जाएंगे थोड़ी, वहां तो हम सॉल्व करेंगे सिचुएशंस। डिसीजन मेकर, प्रॉब्लम सॉल्वर, अपनी लाइफ से एग्जाम्पल तैयार करो जहां से आपने इवेंट मैनेज किया हो, कुछ ऑर्गेनाइज करा हो, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी, ये सब बताओ उनको, जिससे उनको समझ में आए कि यार इसको मैंने अगर अपनी कंपनी में जगह दी तो ये हमारे अच्छा टीम प्लेयर है, ये टीम स्किल्स दिखाएगा, यहाँ टीम लीडर भी है लगता है, वो भी कर सकता है। आई होप यू गेट माय पॉइंट ऑल ऑफ यू, राइट? तो प्लीज समझो इस बात को कि बेसिकली वो तुम्हारी नॉलेज और उसके एप्लीकेशन को चेक कर रहे हैं, तुम्हारी एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है वो चेक कर रहे हैं। और चाहे कहीं भी हो सकता है आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो तो वहां भी इंटरव्यू होगा, आप जॉब करना चाहते हो वहां भी इंटरव्यू होता है, राइट? आप गवर्नमेंट जॉब्स में आईबीपीएस बैंक का एग्जाम देना चाहते हो वहां भी इंटरव्यू होता है, राइट? यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, वहां भी इंटरव्यू होता है। बात समझ रहे हो, राइट? सो एट द एंड ऑफ इट हमें ऑनेस्टी, एथिक्स, डिसीजन मेकिंग, ट्रेनेबिलिटी, इनके बारे में ही उनसे बातें करनी है कि मैं ट्रेनेबल हूं, मैं एक फास्ट लर्नर हूं, मैं जल्दी सीखता हूं चीजों को, और यहां भी मैं जल्दी सीख जाऊंगा। बट जैसे आप ये बोलो कि मैं जल्दी सीखता हूं चीजों को, वो क्या पूछेंगे आपसे? क्या पूछेंगे? क्या पूछेंगे? एग्जाम्पल। एब्सोल्युटली, वेरी गुड। मैं कुछ भी बोलकर बच नहीं सकता, चेक करेंगे वो, चेक करेंगे। और फिर मैं सोचूं अरे मुझे तो एग्जाम्पल याद ही नहीं, गए फंस गए, फिर इसका मतलब तुम सही नहीं बोल रहे, ऐसा सोचेंगे वो, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। ग्रेट, चलो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। बाकी देखो, इंटरव्यू में 2, 4, 5 लोग भी हो सकते हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस सबसे आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है। मान लो अगर 5 लोग बैठे हैं ऐसे करके, 5 लोग, तो फिर अगर ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इधर कोने से, तो मैं अगर सामने बैठा हूं तो मैं, मान लो मैं यहां बैठा हूं टेबल पर, तो मैं इनको देखूंगा शुरू में, लेकिन बाद में आंसर करते वक्त मैं सबको देखूंगा, आई कांटेक्ट मैं सबसे रखूंगा। ऐसा नहीं कि जो मुझसे पूछ रहा है नर्वसनेस में, टेंशन में, मैं सिर्फ उन्हीं को सारा जवाब दे दिया, बाकी पैनल वाले बुरा मान जाएंगे, उनको बोलेंगे यार ये तो गलत बात होगी, ये तो हम पे ध्यान ही नहीं दे रहा, ही इज नॉट शोइंग रेस्पेक्ट टू अस। ऐसा वो सोच सकते हैं, ऐसा वो सोच सकते हैं। छोटी सी बात है ना कि 4 लोग बैठे मेरे सामने, किसी एक ने क्वेश्चन पूछा तो मुझे सबको देखना है आंसर करते हुए, शुरू में वहां से करूंगा, देखूंगा मैं सबको ऐसा करके, राइट? इससे मैं सबको रेस्पेक्ट दे रहा हूं। देखो सब लोग रेस्पेक्टफुल है दुनिया में, सब लोग, तो हमें रेस्पेक्ट देना होगा, दैट्स हाउ इट इज, राइट? जो मुझसे क्वेश्चन पूछेगा मैं वहां से शुरू करूंगा, लेकिन मैं तो लायबल हूं पैनल के लिए, 4 लोग थे पैनल में, तो मुझे सबके लिए लायबल होना है, तो मैं सबको देखकर आंसर करूंगा, ऐसे ऐसे समथिंग होता है। बहुत बेसिक बात है, प्लीज कीप दैट इन माइंड, ठीक है? बाकी आजकल लोग डाइवर्स करियर है, नए नए इकोनॉमीज आ रहे हैं, डाइवर्स टैलेंट चाहिए उनको, सो आप अपने आप को डेवलप करो, दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल, बहुत क्रूशियल है। और देखो इंटरव्यू, बीबी, ये सब कोई बहुत अलग प्रोसेस नहीं है, नॉर्मल सी बात है। सो ट्राई टू मेक इट अ कॉन्वर्सेशन, इसको आप कॉन्वर्सेशन सोचो, ये कॉन्वर्सेशन है, बातें करनी है मुझे। अगर इंटरव्यू है तो पैनल से बातें करनी है मुझे,
और अगर एक जीडी है तो मुझे ग्रुप से बातें करनी है ना, ये बात है ना, दोनों ही जगह मुझे बातें करनी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आपके अंदर जितनी भी नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस है इतने साल का, कॉलेज जाने का, स्कूल जाने का, अगर आपके अंदर ही रह जाए तो बाकी लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज है? कैसे पता चलेगा? भाई बताना पड़ेगा ना। आई नीड टू टेल देम एटलीस्ट, भाई ये है मेरे अंदर, मैं एक अच्छा प्लानर हूं, मैं प्लान कर सकता हूं चीजों को, मैं बताऊंगा उनको। या फिर मैं उनको बताऊंगा कि मैंने ना अभी 3-4 एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करा था रिसेंटली, उसमें मुझे अवार्ड भी मिला है कुछ। मैं उनको बताऊंगा मैंने ये कोर्स किया है यहां से। सी, जब तक बताऊंगा नहीं पता कैसे चलेगा माय डियर स्टूडेंट्स? तो कोई गलत बात नहीं है अगर हम एडवर्टाइज करते हैं तो। इतनी सारी कंपनी वाले टीवी पर ऐड देते हैं कि नहीं? चॉकलेट वाले, टॉफी वाले, वो टी वाले, शुगर वाले, सब एडवर्टाइज कर रहे हैं। पेप्सी वाले, कोक वाले, दे आर एडवर्टाइजिंग देमसेल्व्स। बिजनेस है, करेंगे एडवर्टाइज, कोई गलत बात नहीं है। हाँ, इफ इन देयर एडवर्टाइजमेंट दे शो रॉन्ग थिंग्स, वो गलत बात है। जो चीज उस पैकेट में, जो टूथपेस्ट में या हॉर्लिक्स में नहीं है, वो अगर आप बता रहे हो तो गलत बात है। नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको सच बोलना है। जो है वही बताओ, जो नहीं है उसको बोलो मैं इंप्रूव करूंगा, वो मेरी वीकनेस है, कमजोरी है मेरी, मैं उस पर काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग ऑन, मैं ये बोलूंगा सीधी बात, राइट, एकदम नॉर्मल तरीके से। और मैं लेकिन प्रिपेयर्ड हूं, मैंने अपना एकेडमिक्स रिवाइज कर लिया पहले, मुझे पता था ये पूछेंगे मेरे से। मैं जीके देख चुका हूं थोड़ा बहुत, मुझे पता था ये पूछेंगे मेरे से। मैंने अपने बारे में पता कर लिया, मेरी स्ट्रेंथ, वीकनेस, हॉबीज, वो सब मैंने देख लिया। और वो जो कंपनी वाले आ रहे हैं उनके बारे में मैंने रिसर्च मार लिया। या एमबीए करना है तो मुझे पता है मैं एमबीए क्यों करना चाहता हूं, ये मैं काम करके गया। तो इन दैट केस ऑफ कोर्स आई नो माई सेल्फ। देखो, आई नो माई सेल्फ, सीधी बात तो है। एंड इफ आई नो माई सेल्फ, I'll be able to do justice to this process, which is called a selling process. If it is, whether it's the panel or in a group, चाहे मुझे अपने ग्रुप मेंबर से बात करनी हो, चाहे 5 लोग बैठे हैं सबसे मुझे डिस्कशन करनी हो, या फिर मुझे पैनल के साथ आंसर देना हो उनके क्वेश्चंस, राइट? प्लीज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। अपनी जो बेस्ट चीजें हो उनको बताओ, अपनी स्ट्रेंथ्स, क्वालिटीज, अचीवमेंट्स बताओ, ये आपकी की, राइट? और ज्यादातर पीआई होता है, जीडी कुछ जगहों पर होता है। इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्योंकि इंटरव्यू में ना क्लैरिटी उनको मिलती है आपसे बात करें। जीडी में तो आपका वो टीम स्किल्स देखते हैं। देखो, प्लीज अंडरस्टैंड, प्रोसेस को समझो। ग्रुप डिस्कशन, जब बात ही ग्रुप डिस्कशन की है तो मेरे अंदर वो क्या चेक कर रहे होंगे? सीधी बात, टीम स्किल्स। दैट्स द मेन थिंग। ग्रुप में डिस्कशन मुझसे करवा रहे हैं तो मेरे अंदर वो क्या देख रहे होंगे? ग्रुप की एबिलिटी क्या है तुम्हारे अंदर? कैन यू मैनेज बिग ग्रुप्स? कैन यू पुट फोर्थ योर पॉइंट व्हेन पीपल हैव टू से समथिंग? वो चीजें वो देखना चाहेंगे, राइट? डू यू अलाउ अदर्स टू स्पीक, और इज इट दैट यू कीप ऑन स्पीकिंग एवरी टाइम? एक 10 मिनट की जीडी में अगर आप 8 मिनट आप अकेले ही बोलते हो, दूसरे को बोलने नहीं दे रहे, दूसरे बोलना चाह रहे हैं, आप उनको कट करते हो, आपके अंदर नॉलेज बहुत है, योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर ग्रेट, लेकिन आप टीम स्किल्स नहीं दिखा पाए, जीडी में आपको नंबर कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी नॉलेज और वो सब तो है अच्छी, लेकिन आप ग्रुप में ठीक से नहीं काम कर पा रहे। यू डोंट रियलाइज कि हर मेंबर इंपॉर्टेंट है, हर फ्रेंड जरूरी होता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो आप बाकी लोगों को अपने मौका नहीं दे रहे हो, ये गलत कर रहे हो। फुटबॉल मैच की बात अगर करें हम लोग, एक फुटबॉल मैच में 90 मिनट्स होता है, 22 खिलाड़ी, 11 इधर 11 इधर। तो 90 मिनट्स में चाहे वो रोनाल्डो हो, चाहे मेसी हो, चाहे मैराडोना या कोई भी, अपने पास वो फुटबॉल को मुश्किल से 4 या 5 मिनट रख पाते होंगे उस 90 मिनट्स में। आपने ये रियलाइज किया है? बड़े बड़े खिलाड़ी 5-4 मिनट से ज्यादा फुटबॉल नहीं रख सकते अपने पास। भाई पास मिलेगा वो पास कर देते आगे, कभी आगे जाके गोल मार देते। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, इतना टाइम होता।
पूरे मैच के दौरान 22 खिलाड़ी खेल रहे हैं, 90 मिनट था उनके पास, एक टॉप खिलाड़ी के पास बॉल सिर्फ 4-5 मिनट के लिए आ रहा है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. एंड दैट प्लेयर मेक्स द डिफरेंस इन दैट 4 to 5 minutes. उस 4-5 मिनट में वो खिलाड़ी बता देता है कि मैं मैराडोना हूं, मैं लियोनेल मेसी हूं या रोनाल्डो. आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट हियर. 15 मिनट की जीडी में आपको मुश्किल से 2 मिनट मिलेगा बोलने के लिए, वो भी 3-4 अटेम्प्ट्स में. पहली बार आप 30 सेकंड बोलोगे, फिर 20 सेकंड, फिर 15 सेकंड, 3-4 मौके मिलेंगे बस. उन 3-4 मौकों में आपको बता देना है कि देखो मेरे अंदर क्वालिटीज क्या क्या है, मुझे इस टॉपिक के बारे में पता है, और मैंने दूसरे की बातें भी सुनी है, और मैं आपकी बातें भी डिस्कस कर रहा हूं. Which means in a GD, I'll not be only talking about my points. If there is a group member जिसका कोई अच्छा पॉइंट आ गया कुछ अबाउट इकोनॉमिक स्लो डाउन, एक बढ़िया पॉइंट उधर से उसने बोल दिया कि भाई डिमांड को बढ़ाना है, मनी को पंप करना पड़ेगा मार्केट में, गवर्नमेंट को, आपको अच्छा लगा, आप बोलो oh that's a very good, a very valid point my friend, I would like to add something to that. इसका मतलब ये हुआ कि आप गुड लिसनर हो, और दूसरी बात आपको नॉलेज भी है, आपने उसकी बात को ऐड भी करा, और तीसरी बात आप एक अच्छे टीम प्लेयर हो. किसी अच्छे टीम प्लेयर का रोल ये होता है कि कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए, एंड यू कीप दैट इन माइंड. यू गेट माय पॉइंट कि पीआई का अलग एजेंडा है, अलग उसका पर्पस है, जीडी का अलग पर्पस. पर्सनल इंटरव्यू में वो आपकी इंडिविजुअल नॉलेज, इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस को चेक कर रहे हैं, बट ग्रुप डिस्कशन में आपकी ग्रुप एक्टिविटी को देख रहे हैं. प्लीज बिहेव एज पर द प्रोसेस. जैसी प्रोसेस वैसा आपका बिहेवियर. प्लीज अंडरस्टैंड दैट पॉइंट. जैसा देश वैसा देश. बिहेव इन रोम एज द रोमन्स डू, काइंड ऑफ. यानी कि जैसा सिचुएशन में उसी तरह से ढल जाऊंगा उस चीज में. पीआई में मैं अलग तरीके से अपने आप को पुट फॉरवर्ड करूंगा, अपने पॉइंट्स. जीडी में अलग तरीके से करूंगा. मिक्स एंड मैच नहीं करूंगा. मैं क्रिकेट में बैट से खेलूंगा, बैडमिंटन रैकेट से खेलूंगा. फुटबॉल में गोल करूंगा, बास्केटबॉल में बास्केट करूंगा. बास्केटबॉल में गोल थोड़ी कर देंगे, और फुटबॉल में बास्केट थोड़ी करेंगे. समझ रहे हो बात मेरी, राइट? बहुत सिंपल सी बात. सो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस. पर्सनल इंटरव्यू और जीडी में डिफरेंस आप समझ गए मोर और लेस, राइट? मौका ढूंढना होगा जीडी में आपको बोलने का, और फिर वहां बोलना है. एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि अपार्ट फ्रॉम कंटेंट नॉलेज, जो भी आपको जीडी का कंटेंट होता है वो नॉलेज, उसके अलावा आपको ग्रुप बिहेवियर भी अच्छा रखना है. मतलब किसी की पॉइंट को काटो मत, जल्दी से बोलने दो लोगों को, सुनो ध्यान से, फिर जब बात खत्म हो फिर आप अपनी बात डालो. व्हाट इफ यू डोंट एग्री टू एनीबॉडीज पॉइंट? मान लो कोई ऐसा है जिसका पॉइंट तुम्हें लगा कि यार इतना सही नहीं लगा, फिर आप उसको बोलोगे मैं आपकी बातों से एग्री नहीं करता, बुरा लग जाएगा, राइट? ऐसा बोलोगे आई डोंट एग्री टू यू, बुरा लग जाएगा उसको. तुम्हारा ही टीम मेंबर है वो, तुम्हारा ग्रुप का है ना, टीम मेंबर है, तो सीधा उसको क्यों बोल रहे हो आई डोंट एग्री टू यू? थोड़ा अच्छे से बोलो. सो व्हाट वी डू इज, इसको बोलते हैं यूफेमिज्म. इसका मतलब मैं उसी बात को थोड़ा डिफरेंट घुमा के बोलूंगा. मैं बोलूंगा कि आई वुड लाइक टू डिफर माई फ्रेंड, आई वुड लाइक टू डिफर माई फ्रेंड. आप सही हो, लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो क्या वो सही नहीं होगा? ऐसा करके, यानी कि आप सही हो, मैं गलत नहीं हूं. आप सही हो, मैं गलत नहीं हूं. तुम भी जीत गए, मैं भी जीत गया, मेरी तो टीम है. जीडी में तो टीम तो मेरी है ना. ऐसा करके तो हम लोग उसी बात को एक अच्छी टोन में बोलेंगे. टोन बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स. आपकी टोन, आप वही बात को 5 तरीके से बोल सकते हो एक ही लाइन में. इसको बोलते हैं एम्फेसिस, एम्फसाइज करके, या टोन बोलते हैं. और अलग अलग मीनिंग होगा आपके टोन से. मीनिंग ही चेंज होता है, पता है आपको? मीनिंग ही चेंज हो जाएगा. एक सिंपल एग्जांपल मैं तुम्हें, वो कौन सी मूवी थी, पीके, आमिर खान की मूवी थी पीके, उसमें एक वर्ड था अच्छा. अच्छा याद है आपको? किसी को याद है वो डायलॉग? याद है किसी को? अच्छा को हम कितनी तरीके से बोल सकते हैं, और उसका टोन अलग अलग होगा तो मीनिंग भी अलग अलग हो जाता है. अगर मैं किसी की तारीफ कर रहा हूं, उसने बहुत बढ़िया काम किया, बोलूंगा अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. In different expressions. एब्सोल्युटली. तो इफ आई से अरे बहुत अच्छा काम किया तुमने, तो मैं तारीफ कर रहा हूं, मेरा टोन है बहुत अच्छा किया है.
अगर मैं किसी को टॉन्ट मार रहा हूं तो वो कुछ बोल रहा है, अरे मैंने तो कल बास्केटबॉल में 5 बास्केट कर दिए, तो मैं बोलूंगा अच्छा अच्छा, इसका मतलब मैं उसकी बात मान नहीं रहा, मैं ऐसे टॉन्ट मार, मुझे पता है वो झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ। सी, आपकी टोन से बहुत कुछ पता चल जाता है, राइट? सो दैट इज वेरी क्रूशियल। अपने टोन को अपने कंट्रोल में रखो। आई टेल यू, इससे बहुत इंपॉर्टेंट फायदा होगा टोन वाली बात। अगर मैं इंग्लिश का एक सेंटेंस बोलूं सिंपल सा एम्फेसिस से, सो अगर मैं लिखूं यहां पर आई डिड नॉट स्टील माई ऑन्ट्स केक, अगर आप ये पढ़ पा रहे हो तो एक सिंपल सेंटेंस में लिख दिया है आई डिड नॉट स्टील माई ऑन्ट्स केक। अब मैं यहां पर आपको सिर्फ एक मॉड्यूलेशन का एक एग्जांपल दे रहा हूं कि देखो वॉइस मॉड्यूलेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है जीडी और इंटरव्यू में, मीनिंग कैसे चेंज हो सकता है, राइट? तो यहां मैंने लिखा है आई डिड नॉट स्टील माई ऑन्ट्स केक, यानी कि मैंने जो केक मेरी आंटी ने बनाया था मैंने वो चोरी नहीं करी, मैंने ये बोलना है। अभी मैं देखता हूं, लेट मी सी, आप मुझे बताना मेरे टोन का मतलब क्या है। मैं आई पे फोकस करता हूं, ठीक है? मैं बोल रहा हूं आई डिड नॉट स्टील माई ऑन्ट्स केक, आई डिड नॉट डू इट। तो मैं क्या बोल रहा हूं? आई डिड नॉट स्टील माई ऑन्ट्स केक। इसका मतलब है कि चोरी हुई है लेकिन मैंने नहीं करी। आई डिड नॉट डू इट, आई डिड नॉट स्टील माई ऑन्ट्स केक। अच्छा, अब मैं फोकस चेंज करता हूं, इसका मीनिंग मैं पूछूंगा आपसे, आप बताना कोई भी। स्टील पे फोकस करूंगा। आई डिड नॉट स्टील माई ऑन्ट्स केक, आई डिड नॉट स्टील इट। क्या मतलब हुआ इसका? सर मतलब मैंने चोरी नहीं करा है, मेरे पास ही है बट मैंने चोरी नहीं करा है। वेरी गुड पॉइंट, दैट्स राइट। इसका मतलब पहले केस में था कि आई डिड नॉट स्टील इट, यानी कि मैंने नहीं चुराया है, मैंने लिया भी नहीं, मेरे पास नहीं। आई डिड नॉट स्टील इट, किसी और ने लिया होगा, ऐसा बोले। दूसरे वाले में वेरी गुड पॉइंट सेड आई थिंक कि आई डिड नॉट स्टील माई ऑन्ट्स केक, आई डिड नॉट स्टील इट। इसका मतलब मेरे पास है केक, मेरे पास ही है, ये देखो, लेकिन मैंने चुराया नहीं है, वो वहां पड़ा था, भूख लगी थी, मैंने ले लिया। मीनिंग दो चेंज हो गया, सेम सेंटेंस है। चलो एक बार और कोशिश करते हैं। फिर से मैं मॉड्यूलेशन और एम्फेसिस की बात आपको बता रहा हूं, कैसे हम एम्फसाइज करते हैं और कैसे टोन्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। आई डिड नॉट स्टील माई ऑन्ट्स केक, आई डिड नॉट स्टील माई ऑन्ट्स केक, इसका क्या मतलब हो? मतलब सर मैं अपने आंटी का केक नहीं चुरा सकता। लेकिन मैंने चोरी तो करी है ना। यस सर। दैट्स द पॉइंट, वेरी गुड। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि आई डिड नॉट स्टील माई ऑन्ट्स केक, देखो मैंने चुरा तो लिया है केक, लेकिन वो आंटी ने जो बनाया था वो वाला केक नहीं चुराया है, वो तो मेरे दोस्त ने जो बनाया था वो चुराया है। देख लो, इस वाले टोन में तो ये भी आ रहा है कि मैंने चोरी भी की, ठीक है ना? चलो एक लास्ट बार ट्राई करते हैं। आई डिड नॉट स्टील माई ऑन्ट्स केक, आई डिड नॉट स्टील माई ऑन्ट्स केक, अभी क्या मतलब है? तो मतलब ये है यू स्टील मैंने समथिंग तो बट नहीं नॉट किया। केक। हाँ, फिर से एक बार और प्लीज। मैं चोरी सर नहीं कर यू सकता स्टील केक। समथिंग बट नॉट केक। दैट्स राइट, विच मीन्स इस केस में क्या है कि आई डिड नॉट स्टील माई ऑन्ट्स केक, यानी कि मैंने जो आंटी ने केक बनाया था वो नहीं स्टील किया है, मैंने जो आंटी ने वो जो सब्जी बनाई थी वो चुराया है, कुछ और। सी, कैन यू थिंक ऑफ इट, एक ही सेंटेंस का अगर मैं एम्फेसिस अलग अलग जगह पे कर रहा हूं तो 4 मीनिंग आ गए आपके पास। बताओ कितनी इंपॉर्टेंस है वॉइस मॉड्यूलेशन की। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। पीआई प्रोसेस, जीडी प्रोसेस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का पता चलेगा तब जब आप वॉइस मॉड्यूलेट करोगे। आप किसी भी अच्छे स्पीकर के बारे में मुझे सोच के बताओ, जो भी आपके इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, जो भी, और आपको वो क्यों पसंद है ये भी बताओ। कोई एग्जाम्पल है किसी के पास? डू लाइक एनी स्पीकर जो अच्छा बोलते हो और क्यों आपको वो पसंद है, ये भी बताओ मुझे। एनीबडी, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई बड़े पर्सनैलिटी हो, और उसका रीजन मुझे बताओ, या आपके पेरेंट्स हो या जो भी। सोनू शर्मा। हाँ, क्यों पसंद है, क्यों क्यों? सब बिकॉज वो रियल लाइफ की सिचुएशंस को ही मॉड्यूल करके बताते हैं कि हम उनसे क्या क्या सीख सकते हैं। एब्सोल्युटली, मतलब प्रैक्टिकल सर एप्लीकेशन। संदीप महेश्वरी। ओके, संदीप संदीप महेश्वरी, महेश्वरी क्यों, रीजन? सर वो भी बहुत चीजों को एक्सप्रेस मतलब अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को
रखते हैं साथ में, जिससे कि हमें उससे बहुत वो इंस्पिरेशन होता है, मिलता है। मतलब वो रिलेट कर पाते हैं रियल लाइफ से और या रियल लाइफ से और उनकी लाइफ से। या एग्जैक्टली। रिलेट करके आपको फिर मोटिवेट। वेरी गुड, दैट्स राइट, वेरी गुड, राइट। और एनीबडी एल्स, और कोई किसी का कोई इंस्पिरेशन है? सर मेरे स्कूल की टीचर। अच्छा, तुम्हारे स्कूल की टीचर क्यों पसंद है वो आपको? सर क्योंकि बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में उन्हें बताते हैं अच्छे से। कोई भी आपको पर्सनल प्रॉब्लम हो, वैसी प्रॉब्लम हो, उनके अनुसार उनको बताते हैं, इसलिए। मतलब अब इसको एम्पैथी बोलते हैं, मतलब दूसरे की तरफ से सोचकर उनको हेल्प करते हैं कि भाई वो कैसा Yes. फील कर रहा होगा, और उसकी फीलिंग को समझ के फिर हेल्प करते हैं। सो गुड इनफ, गुड इनफ। हाँ, एनीबडी एल्स? और किसी का कोई अच्छा स्पीकर जो बढ़िया बोलता हो आपको? बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल। क्यों आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्पीच पसंद है? मॉड्यूलेशन सर। हाँ, क्योंकि वो बातों को मॉड्यूलेट करते हैं और बड़े पोएटिक भी हैं, है कि नहीं पता? मुझे लगता है पोएटिक थे यस वो। सर, यस हाँ, सर। एक अच्छी अच्छी लाइनें बोलते हैं और आवाज ऊपर आवाज नीचे ऐसे करके बोलते थे, तो ये बातें बड़ी इम्प्रेस करती है काइंड ऑफ। तो मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप मिरर के सामने कोई भी स्पीच या अपना इंट्रोडक्शन वगैरह बोलने की कोशिश करो और देखो कि क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उस चीज में। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा GDPI का प्रोसेस ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाए। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो आजकल ये सारे इंटरव्यूज जीडीज हो रहे हैं, आपके बी स्कूल्स में भी होते हैं, बैंक एग्जाम्स में, यूपीएससी, सब आपको पता ही होगा कि इंटरव्यूज ले रहे हैं ये लोग। और कभी कभी सिंगल लोगों की इंटरव्यू होती है, कभी कभी ग्रुप में भी 4-5 लोगों की इंटरव्यू एक साथ हो जाती है। ये भी कर रहे हैं आजकल, भाई 4 लोगों की इंटरव्यू एक साथ, एक एक करके सबसे पूछ लिया, ऐसा भी हो रहा है। कभी कभी रेगुलर इंटरव्यू होता है नॉर्मल वाला, और कभी कभी आपको जानबूझकर स्ट्रेस में डालेंगे। प्लीज ऑल ऑफ यू, स्ट्रेस इंटरव्यू क्यों होता है? कोई मुझे बता सकते हो कि ऐसे कंपनी वाले आके जानबूझकर आपके लिए टफ सिचुएशंस क्यों क्रिएट करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? सर इसलिए करते कभी situation रियल लाइफ में। बिल्कुल सही बात है कि कभी रियल लाइफ में आ जाएगी तो क्या करोगे। बिल्कुल सही बात है। तो कभी भी तुम्हें घबराना नहीं है कि ये तो मुझे अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं लोग। अरे वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसी है। दे वांट टू सी कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड की प्रेशर हैंडल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सीधी बात तो ये, आप प्लीज इसको पॉजिटिवली लोगे, नेगेटिवली नहीं लोगे आप। जब आपसे वो अजीब क्वेश्चन पूछे या आपसे पूछे कुछ परेशान करने वाले क्वेश्चंस जानबूझ के, क्या आपको कभी वो डिमोटिवेट भी करेंगे? पता है इंटरव्यू में ऐसा भी होता है, जानबूझ के वो करेंगे, बोलेंगे अरे तुम्हारे अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं है, तुम तो हमारे यहाँ पर काम करने लायक नहीं हो, आई डोंट थिंक तुमको हम लोग ये इंटरव्यू पोजीशन देंगे, ऐसा बोलेंगे। फिर तुम क्या बोलोगे? बताओ, क्या जवाब दोगे उनको? सर आप मुझे एक मौका तो दीजिए। एब्सोल्युटली, और मौका दीजिए वो तो ठीक है, लेकिन उस मौके के साथ मैं एक एग्जाम्पल अटैच कर दूंगा कि सर मुझ में ये काबिलियत है, आप मेरी काबिलियत को चेक कीजिए। एब्सोल्युटली। और तुमने वो जो काबिलियत ऑलरेडी जो प्रूव कर दिया है ना किसी कॉलेज में, किसी इवेंट में, वो बता दो उस समय कि सर अभी रिसेंटली यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज हुआ था इवेंट हमारे कॉलेज में, वो मैंने करा था अच्छे से, हम लोग 5 लोग थे और हमने बहुत अच्छे से करा था और ऐसी सिचुएशन थी सर। यानी कि देखो, सिर्फ उनको अगर बोलोगे ना तुम कि आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मौका दीजिए, तो क्या पता वो नहीं भरोसा करेंगे। लेकिन जैसे ही आप उनको एक एक्चुअल इंसिडेंट दे दोगे कि सर मेरे घर में ये प्रॉब्लम थी और मुझे अकेले ही घर मैनेज करना था, मैंने 5 दिन तक अकेले घर मैनेज करा है, और उस समय मैंने अपने छोटे भाई को पढ़ाया भी था जब उसका एग्जाम था और मेरा भी खुद का एग्जाम था, तो सर मैंने सिचुएशन हैंडल करी ऐसे। तो देखो, आप जब तक उनको कन्विंसिंग बात नहीं बोलोगे ना, आपकी बात वो क्यों मानेंगे? आपकी ओपिनियन वो नहीं मानेंगे। आपको अपने ओपिनियन को एविडेंस या एग्जाम्पल से सपोर्ट करोगे तब वो बात मानेंगे। प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल ऑफ यू। कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी ओपिनियन तभी वैलिड होता है अगर हम उस आर्ग्यूमेंट, उस ओपिनियन के पीछे कोई एक बढ़िया करेंट लाइव एग्जाम्पल का सपोर्ट दे दे। आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हो इससे, आप लोग ध्यान रखना इस बात को, राइट? तो ये ठीक है। अच्छा, अगर मान लो आपसे ये पूछे स्ट्रेस देने के लिए कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो, ये बताओ मुझे, एक रीजन दो, गिव मी वन रीजन दैट यू शुड नॉट बी सिलेक्टेड इन आवर कंपनी, क्या जवाब होगा इसका? शायद आपको मेरी कोई काबिलियत पसंद नहीं आई या मैं उस काबिल नहीं थी। ओके। So why do we say that? We'll say I don't find anyone. नहीं नहीं, वो खुद पूछ रहे हैं, देयर आस्किंग यू। जैसे मान लो पहले उन्होंने पूछा कि Okay, sir. व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, उन्होंने पूछा व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू,
तो आपने बोला कि मैंने ये अचीवमेंट है, मैंने ये पार्टिसिपेशन करा है, मेरे अंदर ग्रुप स्किल्स है, मैं एक टीम प्लेयर हूँ, मैं फास्ट लर्नर, अभी मेरे पास ये सर्टिफिकेट भी है, एक मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी करा है। तो आपने वो सब बता दिया कि क्यों सेलेक्ट करो, आपने 5-6 चीजें बता सर हम यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी हम एग्जांपल दे सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल दे सकते हो। अगर वो पूछ रहे हैं आपको क्यों सेलेक्ट हम किया है, डेली लाइफ से रिलेटेड दे सकते हैं। यस सर, अगर हाँ हम सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, अगर हम इंग्लिश नहीं बोल पाते अच्छी तरह से, तो हम वहाँ पे वो रीजन दे सकते हैं कि मैं नहीं बोल सकता सर, हाँ दैट्स अ बिल्कुल। रीजन। ऑल्सो हम अपनी वीकनेसेस शेयर कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल दैट वी डोंट हैव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, इफ दे हैव टू मल्टीपल टास्क टू डू, देन वी कांट डू दैट ऑन वंस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल Sir, सही we बात। can say like that I am good but not the best, and the best deserves to win. ओके ठीक है, चलो ठीक है, आई वुड एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स। तो देखो इसका मतलब है कि पहली बात तो ये अच्छी बात है आप लोगों में कि आप लोगों ने ऑनेस्टली बोला। वी ऑनेस्टी इज द बेस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ सर कभी भी एक नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव वे में आंसर देके नहीं हो सकता, तो हमें बात घुमानी पड़ेगी वहां पे। अच्छा चलो ठीक है, ये भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेट मी थ्रो सम मोर लाइट, थोड़ा और बताता हूँ इसके बारे में। मेरे से अगर वो पूछ रहे हैं कि आपको क्यों सिलेक्ट किया जाए, तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं भाई, ये मैंने करा है। लेकिन अगर वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको सिलेक्ट क्यों नहीं किया जाए, तो थोड़ा टेंशन हो जाए, यार ये क्या पूछ रहे हैं कि मुझे ये क्यों सिलेक्ट नहीं करें, इतनी दूर से मैं आया हूं इनके पास इंटरव्यू के लिए, बढ़िया कपड़े वगैरह पहनकर इतना अच्छा मैं बोल रहा हूं, और ये मेरे से पूछ रहे हैं कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं किया जाए। पहली चीज हमें ऑनेस्टी के साथ बोलना है कि सर मेरे शायद 12th में या 10th में उतने परसेंटेज नहीं थे, मैं उतना सीरियस नहीं था, और मेरे नंबर कम आए, तो क्या पता वो रीजन हो सकता है आप मुझे सिलेक्ट नहीं करें। लेकिन सर मैंने ग्रेजुएशन में बहुत पढ़ाई करी है, और ग्रेजुएशन में मेरे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स आए सर, मैंने मेहनत करी, मैं टॉप 30 में था, टॉप 20 स्टूडेंट में था। इसका मतलब मैंने अपनी कमजोरी बता दी और एक कवर बता दिया, जैसे somebody rightly said। तो मैं तो पहले सच बोलूंगा उनको ना कि मेरे अंदर है, कमी है, होगी होगी होनी है। ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सबके अंदर वीकनेसेस है, प्लीज इसको डिनाई मत करना कभी भी, हमारे सबके अंदर वीकनेस है। और अगर मुझसे स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं कि आपको क्यों सिलेक्ट नहीं किया, तो मैं बताऊंगा उनको एक आधा चीजें ऑब्वियस जो है ऑब्वियस। मैं बोलूंगा सर आई थिंक आई नीड टू वर्क मोर ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स। आई थिंक आपकी कंपनी में जो जिस तरह की कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है, मुझे थोड़ा और एफर्ट लगाना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि अभी करेंटली मैं उतना अच्छा नहीं हूं कम्युनिकेशन में, तो शायद इस वजह से आप मुझे सेलेक्ट ना करें। लेकिन मैं पिछले कुछ महीनों से बहुत वर्क कर रहा हूं इस पर, मुझे लगता है अगले 1-2 महीने में मैं अपनी कम्युनिकेशन और अच्छी कर लूंगा। फिर से मैंने उनको बताया कि मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो आप मत सेलेक्ट करना मुझे, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूं ऐसा कि अगले 1-2 महीने में अच्छा बन जाऊंगा। ऐसा कवर बता दिया मैंने, सच बोला और कवर बता दिया। ऑब्वियस चीजें जो है सही वाली जेन्युइन वो बता सकते हैं। या जैसे किसी ने बोला कि टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा इश्यू आता है मुझे, 5 चीजें होती हैं तो मैं ठीक से प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रही हूं, लेकिन अभी आजकल मैंने डायरी मेंटेन करना शुरू कर दिया है, और वो डायरी मेरे पर्स में दिखा दूंगा, ये डायरी मैंने मेंटेन करना शुरू कर दिया है, जहां पर आई स्टार्टेड राइटिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ डे। मैंने लिखना शुरू कर दिया है, और मैं उसको जैसे काम हो जाए तो मैं उसको टिक कर देता हूं। लेकिन अभी थोड़ा मुझे टाइम लगेगा मुझे लगता है अपनी इस वीकनेस को दूर करने में, बट देन आई एम वर्किंग ऑन इट। टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा इशू है मेरे साथ, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। तो जो जेन्युइन सच बात है उसको बोलने में डरना मत। मैं बता रहा हूं, दिस इज वन थिंग विच विल हेल्प देम अंडरस्टैंड कि आप अगर मेरी कंपनी में आओगे तो आप एथिकल रहोगे, मेरी कंपनी के साथ धोखा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप तो इतने ऑनेस्ट हो, अपनी बुराई भी कर देते हो यार सबके सामने। तो अगर मैं आपको अपनी कंपनी में जगह दूंगा, इसका मतलब आप मेरी कंपनी के साथ धोखा तो नहीं करोगे। देखो वो तुम्हारे अंदर अपना कलीग देखते हैं अगर इंटरव्यू लेने आए हैं तो, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। और वो ऐसा कलीग चाहते हैं जो अच्छा हो, मोरलेस। ऑफ कोर्स हम लोग सब लोग 100% ऑनेस्ट नहीं है, वो अलग बात है, बट नॉर्मली अच्छा समथिंग ऑफ दैट। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आई थिंक आई वुड एक्सेप्ट योर आइडिया एंड आई होप यू अंडरस्टूड कि हम किस तरह से इसका सही जवाब देंगे और एक कवर बता देंगे। समझ गए? अब एक क्वेश्चन देता हूं थोड़ा सा तुम लोगों को। देखो ऐसा मत करना कि तुम सब कुछ दिल खोल के उनको बता दिया, ये भी मत करना। समझ रहे हो कि तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो और तुमने उनको अपनी 10 बुराइयां बता दी। मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे नाक कम है, मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब इतनी प्रॉब्लम्स तुमने अपनी उनको गिनवा दी कि वो कन्विंस हो गए कि वो तुम्हें सिलेक्ट ना ही करें।
आई होप यू गेट माई पॉइंट, ऑल ऑफ यू. इफ दे आस्क यू कि व्हाई शुड आई नॉट सेलेक्ट यू, उनको कन्विंस मत कर देना इतना 10-15 अपनी वीकनेस दिखाकर कि वो मान ही जाए और वो तुम्हें सेलेक्ट ना ही करे. राइट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट पॉइंट. राइट, चलो ठीक है, गुड. ठीक है, तो आजकल देखो जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो आजकल सिचुएशन भी चेंज हो रहे हैं. आजकल बहुत तरह के इंटरव्यूज हो रहे हैं. एक इंटरव्यू तो भाई नॉर्मल होता था, कभी कभी वो एक सिचुएशन वाला इंटरव्यू दे देंगे. बोलेंगे तो तुम किसी कंपनी के सीईओ हो और उस कंपनी का नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है कोविड के टाइम पर, अभी तुमको सैलरी कट करनी है तो क्या करोगे, ऐसा पूछेंगे तुमसे. सिचुएशन देंगे, बोलेंगे बताओ क्या करोगे. तो तुम क्या बोलोगे उनको, सर आप मुझे 10 सेकंड दे सकते हैं सोचने के लिए. आप ऐसा बोलोगे, बिल्कुल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. सर कैन यू गिव मी 10 सेकंड्स 20 सेकंड्स. और वो बोले हाँ ओके नॉट अ प्रॉब्लम. फिर आप सोचो क्या कर सकता हूं, मैं सीईओ हूं, कोविड का टाइम है, क्या सैलरी कट करूं या ना करूं. फिर एक लॉजिकल सा आंसर उनको बताओ कि सर अभी कुछ महीनों के लिए शायद मैं थोड़ा कट कर लूं क्योंकि कंपनी डाउन है, प्रॉफिट्स कम है, तो पहले मैं सारे एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करूंगा इस बारे में, उनके व्यूज जानूंगा और फिर आई मे टेक दैट स्टेप ऑफ सैलरी कट, जो कि बाद में सिचुएशन ठीक होने के बाद आई वुड लाइक टू रिटर्न इट टू देम. ऐसा करके बोल देगा. अच्छा आंसर समझ गए. तो केस टू केस, तो भाई एक तो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है सामने सामने, और एक ऐसा होता है जैसे अभी हो रहा है, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुम आंसर दे रहे हो. ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है, लाइव इंटरव्यू हो रहा है, टेलीफोनिक हो रहा है, बहुत चीजें हो रही है पिछले 1 साल में. ठीक है, ये चीजें. और तो तुम्हें जो जज करेंगे ना वो प्लीज याद रखना तुम्हारा नॉलेज कैसा है उससे जज करेंगे. तुम्हारी कम्युनिकेशन कैसी उस पर जज करेंगे, सुनते हो या नहीं उस पर जज करेंगे, तुम नॉट वगैरह करते हो नहीं, वर्बल नॉन वर्बल, उस पर जज करेंगे आपको. आप क्लियर हो कि क्यों आए हो यहाँ पर एमबीए करने के लिए, या क्यों आए हो यहाँ पर बैंक की जॉब करने के लिए, या क्यों आए हो यहाँ पर यूपीएससी आईएएस बनना क्यों चाहते हो. गोल क्लैरिटी है, गोल क्लैरिटी, जिंदगी में क्या करना है, ऐसा कुछ. तीसरी चीज, राइट, पहली चीज क्या बताई मैंने, नॉलेज. दूसरी चीज कम्युनिकेशन. तीसरी गोल क्लैरिटी. और आपकी पर्सनैलिटी, आपकी क्या एम्बिशन है, वैल्यूज क्या है, टीम स्किल्स है या नहीं, ये 3-4 चीजें आपके अंदर वो देखेंगे. आपकी पर्सनैलिटी, आपकी नॉलेज, आपकी बिहेवियर और आपकी क्लैरिटी, कम्युनिकेशन क्लैरिटी. और कभी कभी थोड़े से खतरनाक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एनालिटिकल पजल्स वगैरह पूछ सकते हैं आपको परेशान करने के लिए या आपकी एप्लीकेशन को जानने के लिए कि आप कैसे जवाब दोगे इस क्वेश्चन का. ऐसा सो इवन दैट इज अ पॉसिबिलिटी. ये भी हो सकता है कि आपको कुछ एनालिटिकल सा कुछ पजल जैसा कुछ दे दे कि ये होगा तो क्या करोगे, वो होगा तो क्या करोगे, ऐसा करके. तो दैट ऑल्सो इज अ पॉसिबिलिटी. या तुमने बोला उनको मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैथ से कुछ 2-4 सवाल पूछ लेंगे तुमसे, सिंपल से. बहुत बार ऐसा होता है. अभी एक किसी ने बोला था पिछले इंटरव्यू में कहीं पर, सर मैथ्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. उनसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, पता है क्या, अच्छा ये बताओ 0.9 का स्क्वायर रूट अंडर क्या होगा, क्या वैल्यू होगा इसका. 0.9 अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसा पूछते सीधा. जल्दी बताओ, 5 सेकेंड है तुम्हारे पास. स्क्वायर रूट ऑफ 0.9, जिसको मैथ्स पसंद है. 3√10/10. 3√10. ठीक है, मुझे पॉइंट्स में बताओ, पॉइंट्स में. 0.94 समथिंग. ओके, तुमने कैलकुलेशन कर लिया लगता है मुझे, कहीं तुमने देख लिया. सर होगा ही नहीं, क्योंकि 0.09 का होगा स्क्वायर रूट. 0.09 होगा. 0.09 का स्क्वायर रूट हो, 0.9 का कैसे हो. नहीं हो सकता है भाई, ऐसा नंबर हो सकता है जिसको उससे खुद से मल्टीप्लाई करके 0.9 आ जाए. नहीं हो सकता. और एनीबडी एल्स? 2 आंसर मेरे पास है, 0.94, 0.09 या जो भी. सर ये 0.94. 0.9. और इफ यू राउंड ऑफ इट इट्स 0.95. ठीक है, गुड इनफ. ठीक. सो विच मीन देखो नॉर्मली क्या होता है, किसी से जल्दीबाजी में पूछो ना कि 9 का स्क्वायर रूट क्या है, तो सबको पता है 3 होता है, सबको पता है 3 3 9. और जैसे ही 0.9 का पूछो तो पता है जल्दीबाजी में लोग पता है क्या बोल देते, 0.3 बोल देते. ये गलत है ना, है या नहीं बताओ सर. हाँ, क्योंकि 0.3 को 0.3 से मल्टीप्लाई करके तो 0.09 आ जाता है. तो ये तो आंसर गलत था. और कुछ लोग और जल्दी में पता है क्या बोलते हैं, सर 0.03 ऐसे बोलते हैं, 0.03. वो भी गलत है, क्योंकि 0.03 को अगर हम 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 0.0009 आ जाएगा। ये तो बेसिक मैथ्स है। तो भाई ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे थे उससे? क्योंकि उसने खुद बोला कि मेरी मैथ स्ट्रांग है, एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी उन्होंने, राइट? हाँ, तो अगर हम 0.9 को 0.9 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.8 के आसपास आ जाता है, विच इज वेरी क्लोज टू 0.9। सिंपल लॉजिक इसका यही है कि अगर हम 0.9 को 0.9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.8 आ जाता है, और 0.8 बहुत क्लोज है 0.9 से। इसका मतलब आंसर शुड बी समथिंग हियर, मतलब इसी के आसपास कुछ होना चाहिए। सो 0.94, 0.95, सो दैट वाज द राइट आंसर। अब ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन सबसे नहीं पूछेंगे, उससे क्यों पूछा? बिकॉज द पर्सन सेड कि मेरा मैथ स्ट्रांग है। आई होप यू गेट द पॉइंट, ठीक है? तो ये चीजें होती है आपकी एनालिटिकल माइंडसेट, रीजनिंग एबिलिटीज, दे मे लाइक टू चेक दिस, ठीक है? सो बी केयरफुल। और कभी कभी बिल्कुल अजीब सा सवाल पूछ लेंगे आपसे, बताओ इंडिया में कितने व्हाइट कार्स हैं? कितनी व्हाइट कार्स हैं इंडिया में? कौन बताएगा मुझे? सर इट इज इम्पॉसिबल टू काउंट। ओके, बाकी और कोई कुछ बोलना चाहता है? कोई भी अप्रोक्स आंसर दे सकते, क्योंकि उनको भी तो नहीं पता होगा ना कि कितने टोटल काउंट्स हैं। सही बात है, ठीक है। कैसे बोलेंगे? क्या? तो जितनी सोल्ड हुई है, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता लगेगा। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, गुड इनफ। अभी देखो सही बात है, एग्जैक्ट नंबर तो किसी को नहीं पता होगी कितने व्हाइट कार्स हैं, लेकिन आप मुझे एक प्रोसेस बता सकते हो जिससे ये हम पता कर पाए? एक ऐसा कोई प्रोसेस बताओ जिससे कि पता चल जाए, कुछ ऐसा आइडिया बताओ जिससे हम पता कर पाए इंडिया में कितने प्रोबेबिलिटी। हाँ, प्रोबेबिलिटी। कुछ मुझे तरीका बताओ कि कैसे करेंगे। अगर मान लो सर आरटीओ रजिस्ट्रेशन हम लोग चेक कर सकते आरटीओ पर जो रजिस्ट्रेशन होता है वहां पे, ठीक है, आरटीओ रजिस्ट्रेशन से पूरा चेक कर लेंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से। हाँ, नहीं, लेकिन वो तुमसे बोल रहे हैं क्या कि अंदाजा लगाने बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि तुम आरटीओ में जाके चेक करो, नहीं कर सकते। पॉपुलेशन के हिसाब से सर, 1/4, बहुत अच्छा पॉइंट है, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड। 1/2 या 1/4 ऐसा कुछ ले लिया। चलो ठीक है, वेरी गुड। पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन है करीब 130 करोड़, 135 करोड़ के आसपास। हाँ, अब आगे बताओ, आगे बताओ 130 करोड़ में से कितने लोग? इसका ले लो 3/4 ले लो, उसका अप्रोक्स अराउंड 3/4 ले ले। क्यों? रीजन ऐसे ही मैं सर, कोई वो रीजन नहीं है। रीजन इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, रीजन इंपॉर्टेंट है। सबके पास कार नहीं होगी ना। रजिस्टर्ड नंबर ऑफ व्हीकल्स ले लें। नहीं, वो नहीं पता हमें, व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन नंबर्स वगैरह वो सब नहीं पता है। आप मुझे लॉजिकली बताओ कितने गरीब लोग रीजन इसलिए ये हो सकता है कि सबके पास कार नहीं होगी। इंडिया में हर एक 10 फैमिली पे सर उसके हिसाब से पॉवर्टी लेवल को भी चेक करके। हाँ, वेरी गुड, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, अमेरिका में थोड़ी हैं। देखो बिलो पॉवर्टी लाइन करीब 30% लोग हैं, 30% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो इसका 30% कर लो, 1/3 कर लो करीब, और बाकी जो और 30% लोग हैं वो गरीब है, पुअर है। 60% लोग तो गरीब है इंडिया में जो साइकिल तक अफोर्ड नहीं कर सकते, पता है आपको? दैट इज द केस। यानी कि 65 करोड़ तो ऐसे चले गए, 65-70 करोड़, अगर 60% देखें तो 70 करोड़ लोग तो ऐसे चले गए तुम्हारे, 70 से 80 करोड़। बाकी जो बच गए उनमें से लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और हाई क्लास के लोग। लोअर मिडिल क्लास कैन नॉट अफोर्ड कार्स, तो अगेन 20% और हटाओ, दे कैन अफोर्ड अ स्कूटर और साइकिल। 80% तो ऐसे चले गए, 80% लोग ऐसे चले गए, राइट? फिर बचे आपके पास 20% लोग, 20-30% लोग। 30% लोग में से आप उनकी नंबर ऑफ फैमिली निकालो, कितनी फैमिलीज होंगी। अगर आपके पास मान लो 40 करोड़ बच गए या 30 करोड़ बच गए और एक फैमिली में 5 लोग हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास फैमिली कार होती है, फैमिली कार। 5 लोगों के परिवार पे एक कार, नॉर्मली ऐसा होता है। तो इसको डिवाइड करो टाउन्स में और सिटीज में। छोटे शहरों में 5 लोगों पे एक गाड़ी, बड़े शहरों में 5 लोगों पे 3 गाड़ियां होती है, राइट? सी, नोबडी नोज द आंसर। ये क्वेश्चन आपसे वो क्यों पूछ रहे पता है? कि आप क्या कोई प्रोसेस डिवाइस कर सकते हो अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए आपकी कि भाई मुझे पता करनी है कि हमने व्हाइट कार से करी है, तो क्या मैं ऐसा बोल देता हूं अरे ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं डर जाऊंगा? या फिर आप इसको चैलेंज लो, नहीं, लेट मी फाइंड आउट। इतनी पॉपुलेशन है, इतने बिलो पॉवर्टी लाइन है, इतने गरीब है, माइनस किया, अच्छा 5 लोगों पे एक गाड़ी होती है, उसको डिवाइड किया तो लगता है 20 करोड़ लोग, करीब 10 करोड़ फैमिलीज होंगी। 10 करोड़ फैमिली में से सब लोगों के पास व्हाइट कार्स तो नहीं होंगी,
तो उसमें से करीब 30% लोगों के पास व्हाइट कार होंगे। क्यों? क्योंकि व्हाइट कार ज्यादा बिकती है। क्यों ज्यादा बिकती है व्हाइट कार्स? इन रीजन, व्हाइट कार ज्यादा क्यों बिकती है? सर उबर और टैक्सीज में यूज होती है ज्यादातर व्हाइट कार्स। सर मोस्टली लोगों को ये लगता है कि गंदी नहीं होती है इसलिए। ओके, और कोई रीजन? Sir, the color doesn't fade away with the sunlight. और सर मोस्टली लोग ऑनेस्टी के उससे भी व्हाइट कार यूज ठीक करते है, हैं ज्यादातर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और कोई रीजन? सर एक्सीडेंट को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, ठीक है, डिमांड ज्यादा More होती है। comfortable in summer month. समर मंथ में हीट अगर रिफ्लेक्ट होता है, वेरी गुड, ये साइंटिफिक आंसर था, बहुत अच्छा। देखो, एक तो हीट रिफ्लेक्शन वाली बात है, एक दूसरी बात ये है कि ये मेंटेनेंस ज्यादा नहीं मांगती व्हाइट कार्स। तीसरी बात ये है कि सस्ती होती है। अगर आप कलर में जाओगे, अलग अलग कलर में, वो महंगी हो जाती है बहुत बार, मेटालिक कलर, ये कलर, वो कलर, गाड़ियां 20-25 हजार 30 हजार ज्यादा महंगी हो जाती है। तो व्हाइट कार थोड़ी सस्ती भी होती है, राइट? प्लस वो एवरग्रीन कलर है, व्हाइट सबको पसंद है वैसा। तो बहुत सारे रीजन है। सो इसी वजह से 10 में से 3-4 गाड़ियां व्हाइट होती है नॉर्मली देखा जाए तो, यानी कि 30 से 40% गाड़ियां व्हाइट होती है। ये रीजनिंग वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। आई होप यू गेट माय पॉइंट। आई होप मैंने आपको सारे रीजंस बता दिए कि आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स, पर्सनैलिटी, आपकी कम्युनिकेशन, गोल क्लैरिटी और आपकी नॉलेज देखी जाएगी। प्लीज इन चीजों पे आप वर्क करना शुरू करो, जिससे आपकी जीडी और इंटरव्यू स्किल्स अच्छी हो जाए। ठीक है, दिस वेयर आई वुड लाइक टू एंड माय सेशन। ऑल ऑफ यू, इट्स वेरी नाइस टेकिंग द सेशन फॉर यू। ऑल ऑफ यू वेरी इंटरैक्टिव। आप लोगों ने बहुत ध्यान से बातें सुनी और डिस्कशन भी किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन रखा। सो आई रियली appreciate that from you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you Keshav, so much, sir. Keshav and Sagar, Thank you, sir. Yes, sir. Yes, sir. please continue the session. Thank you so much, sir, for such a session, sir. There are some queries Okay, which I'll students quickly, want to ask. Can I? I am looking at some queries. मैं chat में देख रहा हूँ एक बार, जल्दी में। Yeah. ओके, सिविल सर्विस प्रिपरेशन के बारे में एक बार डिटेल में देखो। सिविल सर्विसेज में क्या होता है ना, तुम्हारी जीके बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए विषय। अगर आप, क्योंकि वो जीएस के बहुत सारे पेपर होते हैं उसमें, तो अगर वो स्ट्रांग है तो आप आराम से सिविल सर्विसेज निकाल सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब चीजों पे वर्क करना पड़ेगा, राइट? प्लस उसमें एक सीसैट का पेपर भी होता है। सीसैट जो पेपर होता है वो आपकी बेसिक एप्टीट्यूड पे होता है। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स आती है उसमें, बेसिक मैथ्स, बेसिक इंग्लिश, बेसिक रीजनिंग। तो सीसैट के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जो क्वालिफाइंग है, तो वो करना पड़ेगा और आपको जीके का एग्जाम देना पड़ेगा। और उसके बाद एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, एक कोई सब्जेक्ट, चाहे आप एंथ्रोपोलॉजी ले लो, हिस्ट्री ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, जिसको लेकर आप मेंस एग्जाम दोगे और उसमें भी जीके होगा। यानी कि जीके प्रिलिमिनरी में भी होगा और मेंस में भी होगा। इसके लिए कम से कम 1 से 2 साल की बहुत तगड़ी मेहनत चाहिए जीके और अपने उस सब्जेक्ट के ऊपर। और बाकी जो एप्टीट्यूड है वो इजी होता है, वो इजीली हो जाएगा, राइट? सो दैट्स हाउ आई वुड से। इंटर्नशिप देखो सचिन, आजकल एक इंटर्न शाला करके है ऑनलाइन, इंटर्न शाला, इंटर्न SHALA, वहां जाकर ढूंढो, आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। नहीं तो डायरेक्टली कंपनी के वेबसाइट पे जाकर अपने रेज्यूमेस फॉरवर्ड करो कि मुझे इंटर्नशिप करनी है, मुझे ये सीखना है, काइंड ऑफ, तो यू मे गेट सम रिवर्ट, कुछ रिवर्ट कर देते हैं, ठीक है? और if our hobbies is not in relation with the post we are interviewing for, विपुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी हॉबी अगर मान लो पेंटिंग है और आपका जॉब है मान लो अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोई दिक्कत नहीं। हमारी हॉबी अलग हो सकती है, हमारी जॉब अलग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी हॉबी से हमारे अंदर एक पैशन आता है, पैशन, और पैशन को ना हम कहीं भी यूज कर सकते हैं जिंदगी में। क्रिकेट खेलने में भी यूज कर सकते हैं, पढ़ाई में भी यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। तो मेरी हॉबी मुझे क्या देती है? पैशन, और मैं पैशन तो कहीं भी यूज कर लूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी हॉबी कुछ और हो सकती है, आपका जॉब कुछ और हो सकता है, और आप दोनों साथ में लेकर चल सकते हो जिंदगी भर, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी भी बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेलता हूं क्योंकि मेरी हॉबी थी, अभी भी खेलता हूं, जब भी टाइम मिलता है तो वो भी करता हूं। तो दैट्स हाउ इट इज। और अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी है आदित्य, तो प्लीज घबराना नहीं है, आप बोलो उनको कि मेरे अंदर कमी है। देखो, अगर हम लोग नॉर्मल ह्यूमन हैं तो हमारे अंदर कमी होगी, और कभी भी अपनी कमजोरी के बारे में बोलते वक्त डरना नहीं है, क्योंकि आप सच बोल रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपसे कोई कमजोरी पूछे आपको मत नहीं बताओ,
कि मैं क्यों बताऊं ऐसा, अरे कोई बात नहीं, इंटरव्यू पूछ रहा है आपसे तो ठीक है, आप उनको बोलो मेरे अंदर ये वीकनेस है बट मैं वर्क कर रहा हूं उसके ऊपर, ये भी बोलो कि मैं उस पर कुछ काम कर रहा हूं, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि हाउ मच सैलरी डू यू गेट, देखो अगर आपसे सैलरी पूछ रहे हैं अप्रॉक्स सैलरी बता सकते हो, क्योंकि बहुत बार कंपनीज क्या करती है आपसे पिछले सैलरी के बेसिस पर आपकी अगली सैलरी डिसाइड करती है, ये नॉर्मल है, क्योंकि कंपनी वालों को आपका पता चलता है कि आपके अंदर एबिलिटी कितनी है, आपकी सैलरी कितनी मिल रही है, जिससे कि आपको अगली सैलरी वो बता पाए, नॉट अ प्रॉब्लम। तो कैट एग्जामिनेशन के लिए आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग अच्छे से करना पड़ेगा। कैट, जैट, IFT ये सब एंट्रेंस एग्जाम होता है, और सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए आपको। 10th लेवल मैथ्स आता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे बी स्कूल में आप जा सकते हैं। और ये जो सोशल प्रेशर है ना राज, प्लीज लोग प्रेशर डालेंगे, आप बस झुककर उनको प्रणाम करो और आगे बढ़ो, उनकी बात सुन लो, अगर आपको ठीक लगती है रखो, नहीं ठीक लगती है हटा दो दिमाग से और अपना आगे बढ़ते रहो। दुनिया वाले क्या कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी क्लैरिटी रखो कि मुझे ये जिंदगी में करना है, प्लान एक रखो अपने पास, लेकिन दूसरों को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है, हमें दूसरों को प्रणाम करना, आगे निकल जाना है, सीधी बात। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। सो आई थिंक दीस आर द क्वेश्चंस। केशव ये सब क्वेश्चंस थे, और तो क्वेश्चन? यस सर, नहीं सर, थैंक यू सो मच सर फॉर क्लियरिंग आवर डाउट्स, and I once again especially thank you for such an interactive and valuable session, and the pointers which you told us about that difference between personal interview and group discussion, that is very much important, and how we have to give real life examples while the panel asks us, it is also I think very important which students should. And thirdly, the voice modulation technique that you told us, it's important also, can't be ignored. So thank you so much sir for such a great lecture and spending time with us, and I also thank Dr. Hridesh Bhardwaj sir for providing us such a platform so that we can solve our queries and can gain that special knowledge which can't be even on internet or from any other sources, because thank you Keshav, sorry for interruption. Amit ji, I would like to say few words. I was listening very carefully your whole session, बहुत ध्यान से सुन रहा था, आप लोगों ने भी, सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुना होगा। देखिए आपके लाइफ के बहुत से पहलुओं को अमित जी ने छुआ, बस आपको इतना ध्यान रखना है आप सभी को, यू ऑल हैव टू बी फेयर एंड सिंसियर फॉर योरसेल्फ। व्हेन यू विल बी सिंसियर, diligent, fair and accountable and responsible for yourself, you will always be accountable and responsible for everyone, either it is your personal life or it is your professional life. आपका व्यवसायिक जीवन है या आपका व्यक्तिगत जीवन है, आप हर जगह ईमानदारी का ही और मेहनत का ही परिचय देंगे। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अमित जी, आपने बहुत अच्छे से बच्चों को समझाया। और एक चीज और यहाँ पे कहना चाहूंगा, आपकी सारी चीजों को मैंने ध्यान से सुना, कोशिश कीजिएगा आप सभी स्टूडेंट्स प्लीज अपनी पर्सनालिटी को ही बहुत फेयर बना लीजिए। कहते हैं कि जब हम सच बोलते हैं तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती, सही बात। सच बोलिए, सच को एक्सेप्ट कीजिए, फेयर रहिए, बोल्ड रहिए, challenges को एक्सेप्ट कीजिए, प्लीज ऑलवेज कीप योरसेल्फ अपडेट। एंड लास्ट वन थिंग, आपका विचार, आपका चॉइस, स्पेशली जो आपकी सोच है, जो आपका विचार है, उससे आपका व्यवहार बनता है, आपके व्यवहार से आपका पूरा संस्कार बनता है और आपके संस्कारों से आपका प्रचार और व्यापार बढ़ता है। तो अपने विचारों की शुद्धता को बनाते हुए, टू मेंटेन अ प्योरिटी एंड ऑनेस्टी इन योर थॉट, ऑलवेज बी रेडी टू अपडेट योरसेल्फ एंड प्लीज कंफर्टेबल जोन को छोड़ दीजिएगा, कंफर्टेबल जोन में बिल्कुल नहीं रहना। व्हेन यू आर वेक अप इन द अर्ली मॉर्निंग, लिसन केयरफुली, लाइफ इज गिविंग यू अ गुगली, जैसे क्रिकेट में गुगली बॉल डाली जाती है, सुबह सुबह जीवन आप सबको एक गुगली बॉल डालता है। कभी आपको सुबह उठना हो तो 5 बजे अलार्म बजती है, एंड इट इज फेयर इवन इन माय फ्रंट। कभी कभी हम लोग उस अलार्म को बंद कर देते हैं, यकीन मानिए वी आर आउट, उस वक्त हम आउट हो जाते हैं। जिस दिन आपने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया कि नहीं मुझे उठना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, शीशे के सामने खड़े होकर अपनी कमियों को बताते सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, यकीन मानिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट शुरू कर दीजिए, बहुत जल्दी आप बहुत सारी चीजों को सीख जाएंगे। और लास्ट में एक चीज और, 1 या 2 दिन में व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता, ये पूरे आपके जीवन का परिचय होता है।
गलतियां करना बुरा नहीं है, गलतियों को रिपीट करना बहुत बुरा है। ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। कोई बुरा नहीं है गलती करना, मैंने भी किया, सीखा, बट उसको रिपीटिशन नहीं करना। विद ऑल दीज काइंड वर्ड्स, I would convey my special thanks to Mr. Amit ji and Time Institution to spare your valuable time for all my students. I would like to deeply thanks to Mr. Amit who has spared your valuable time. Thank you so much, sir. Thank you so much. And I would like to appreciate, and I would like to announce one more thing. Listen carefully, all students. Mr. Amit sir will be with us on 26th again. How to prepare a professional CV. So we will welcome him again, and it is my indeed pleasure to welcome him again at the Shamdal College evening. Thank you so much. Thank you so much to all of you. Thank you very much. It was a pleasure. All the best, all of you. Do good in your life. सर सॉरी बट एक क्वेश्चन था मेरा, पूछ सकती हूँ मैं? सर पॉलिटिक्स में तो कोई इंटरव्यू नहीं होता, सो उसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो, पॉलिटिक्स में भी इंटरव्यू होता है। अगर तुम देखो, बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में जो लीडर बनते हैं 20 साल 30 साल से लगे होते हैं, पता है? उनके कनेक्शंस, उनसे बातें करनी होती है, और जो उनके जो लीडर्स होते हैं उनको देखते हैं कि वो कौन क्या कर रहा है, उनका इवैल्यूएशन होता है। बिना इवैल्यूएशन का कुछ नहीं होता। लोग देख रहे होते हैं कौन क्या काम कर रहा है, तो तुम्हारा काम ही तुम्हारा इंटरव्यू होगा पॉलिटिक्स में, और उस बेसिस पर तुम्हें लोग जज करेंगे। और फिर तुम कितना सोशल सर्विस करते हो, कितने कंसर्न हो लोगों के बारे में, बिना टाइम का ख्याल किए कैसे तुम कभी भी हेल्प करने निकल जाते हो, किसी गांव में, किसी जगह पर। उन सब चीजों से आपको जज, आपका काम ही आपको जज करेगा। आई होप दैट मेक्स सेंस। ठीक है? यस सर, बट सर बहुत से लोगों की सोच होती है कि बॉयज जो होते हैं वो इस पॉलिटिक्स में आने के लिए काबिल है, बट बहुत से लोगों की ये भी सोच होती है कि जो गर्ल्स होती है वो इसमें आने के लिए लायक नहीं है, तो उन्हें चांस भी नहीं देते। सर इस थिंकिंग को कैसे चेंज किया जा सकता है? देखो, ये थिंकिंग चेंज हो रही है। तुम देख लो नंबर ऑफ पॉलिटिशियन आज की डेट में कितने सारे फीमेल कैंडिडेट जीत रही हैं। तुम चेक करो, पार्लियामेंट में, लोकल इलेक्शंस में बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट। तुम्हारे कॉलेज में देख लेना, तुम कॉलेज के इलेक्शंस में बहुत बार फीमेल ही जीतती है, मैं बता रहा हूं। क्योंकि ज्यादातर केस में देखा गया है कि जो फीमेल है मेन के मुकाबले में बेटर मैनेजर्स होती है। एक्चुअली बता रहा हूं मैं तुमको, ये अंदर की बात है। तो फीमेल दे आर एक्चुअली बेटर मैनेजर्स। क्यों पता है? क्योंकि वो मल्टीटास्किंग होती है, वो घर का भी काम देख रही है, कभी बाहर भी कर रही है, बच्चों को पढ़ा भी रही है। सो दे आर बेटर इक्विप्ड। और जो मेन है वो थोड़े से यूनिडायरेक्शनल होते हैं, एक दो काम के बाद में थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है उनके ऊपर। तो आई थिंक फीमेल के साथ ये एडवांटेज रहता है, क्योंकि उनका इस तरह से अपब्रिंगिंग भी होता है कि वो बहुत सारी चीजों को मैनेज कर सकती है। तो अगर देश को चलाने की बात हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाने की बात हो, आजकल फीमेल दे आर परफॉर्मिंग इक्वली गुड एज मेल। और ये चीजें बदल रही हैं। अब ज्यादा तुम्हें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, मत परेशान हो, चीजें बदल रही हैं ऑलरेडी। तुम देख लो, इंदिरा नूई, किरण मजुमदार शॉ, ऑल दीज, शिखा शर्मा, सारे, और जो वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारी अमेरिका की, देखो कितने लोग हैं आज जो आगे। कमला हैरिस। हाँ, कमला हैरिस, कमला देवी हैरिस, सही बात। ठीक है, चलो, विद दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड। थैंक यू रितेश सर, थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय।